Good morning. Today's subject is drafting and pleading, in which today I will take up the topic application for maintenance by wife under section 125 of CRPC. So, how to draft an application for maintenance to file a suit for maintenance by wife to her husband. So, first it is called the application, not the petition, right? In case of matrimonial, if we want any relief, the draft of the draft is called the application. In case of matrimonial reliefs only. So here, application for maintenance by wife under section 125 of CRPC. So write the name of the court in which the jurisdiction lies. Where the family court exists, the jurisdiction will be in the family court. Otherwise, the jurisdiction will be lies in the judicial magistrate first class or ACJM, additional chief judicial magistrate, right? Then the case number of the year. Then the party's name. AB here, write the name of the wife, then wife of, the name of the person, then the resident at, then just below of the line petitioner versus the respondent. Respondent, who is the respondent here? The husband is the respondent, right? So the name of the husband, son of, resident at, then below the line respondent. Now the content of the application. The petitioner above named specifically stated as under. The first point is that applicant is legally married wife of the respondent, both of whom lived as husband and wife for 2 years at, and by such marriage a child was born to them on the date this petition he is months old. तो देखिए पहली लाइन में जो हमें बताना होता है वो ये है कि एप्लीकेंट जो है, वाइफ जो है, उसकी शादी जो है प्रतिवादी के साथ विधि पूर्वक हुई। दोनों ही साथ साथ हस्बैंड और वाइफ के रूप में कितने साल साथ रहे वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहिए। किस जगह पर साथ रहे, जयपुर, कोटा या किसी भी जगह जहाँ पर वो आपको स्पेसिफाई करना होगा। उसके बाद इन 2 या 3 साल के पीरियड में क्या उनकी कोई संतान हुई है, यदि संतान हुई है तो उसका स्पेसिफिकेशन देना चाहिए और उसकी एज पिटीशन फाइल करने तक कितनी है वो भी हमें देना चाहिए फर्स्ट पॉइंट में। पॉइंट नंबर 2, that since the beginning of the marriage the respondent has become drunk and has been indulging in other immoral activities. To meet his debt, he demanded for 50,000 from applicant's father by way of additional dowry, and for this his failure to meet respondent's demand, the applicant has been beaten and subjected to cruelty. ठीक है। सेकेंड पॉइंट में आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो एप्लीकेंट है वो बता रही है कि शादी के बाद से ही उसका हस्बैंड जो है लगातार शराब का आदी रहा है और उसका जो गतिविधियाँ हैं वो नैतिक गतिविधियों से अलग है। वो लगातार दहेज के अलावा भी दहेज की मांग करता रहता है। दहेज की मांग के रूप में उसने 50,000 रुपये अपने ससुर से मांग करने के लिए अपनी वाइफ को कहा, और जब उसने मना किया तो उसके साथ मारपीट की और वो बार बार उसके साथ इसी तरीके का क्रूरतापूर्ण व्यवहार लगातार करता रहता है और उसे जान से मारने की भी धमकी देता है। तीसरे पॉइंट में हमें यहाँ बताया है कि दैट द रेस्पोंडेंट हैड स्टॉप्ड paying anything for household expenses, unable to bear the cries of her starving minor son, and the applicant demanded money from the respondent, and she was tied by the respondent with a pillar, and a licensed gun was pointed towards her and was threatened to kill. जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को घर खर्च नहीं देता है। जब वाइफ यहाँ पर क्लेम कर रही है कि जब मैंने उनसे घर चलाने के लिए पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे पिलर से बांध दिया और मेरे सर पर पिस्टल लगाकर मुझे मारने की धमकी दी। दैट अल्टीमेटली एप्लीकेंट वॉज टर्न्ड आउट ऑफ द मैट्रिमोनियल हाउस बाय द रेस्पोंडेंट।
बाद में जब उसको मौका मिला, पत्नी को मौका मिला, तो वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गई। एप्लीकेंट एंड हर माइनर सन हैड टू लिव ऑन द मर्सी ऑफ नेबर्स। और जो पत्नी है, वाइफ है, वो और उसका बच्चा, जो कि बहुत ही छोटा सा बच्चा है, वो अपने पड़ोसियों की मदद से अपनी जान बचाकर सर्वाइव कर पाए। फिर बाद में पत्नी आपको ये बताती है, यहाँ पर लिखती है that meanwhile relatives of the applicant tried to persuade the respondent to change his way of lifestyle and lead a family life with dignity, and his wife and minor child too needed his father's care and attention. इस केस के बाद, इस घटना के बाद परिवार के जो सदस्य होते हैं, बड़े बुजुर्ग जो सदस्य होते हैं, उन्होंने पति को समझाने की बहुत कोशिश की कि आप अपना आचरण सुधार लें और अपने पत्नी और बच्चे के साथ एक गरिमामय सम्मानपूर्वक जीवन जिए। लेकिन पति का जो है इन बातों पर कोई असर नहीं हुआ। ठीक है। दैट अनेबल्स द मेंटेन herself and her minor son, parents being old and because of the poverty, the petitioner issued a legal notice to respondent on dated demanding separate maintenance for herself and her minor child, which was received by the respondent on the date. ठीक है। इसके बाद देखिए, इतना समझाने के बाद भी जब पति नहीं माना, तो पत्नी ने मजबूरन, क्योंकि उसके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, वो पढ़ी लिखी भी ज़्यादा नहीं है और उसके पास बच्चा भी छोटा, उसके माता पिता उसका भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो उसने अपने पति को एक विधिक नोटिस भेजा कि मैं पृथक निवास के साथ साथ अपने और अपने बच्चे के लिए मेंटेनेंस चाहती हूँ। और यहाँ पर ये स्पेसिफाई करना होता है कि रेस्पोंडेंट जो कि पति है, उसे वो नोटिस किस तारीख को मिला, तो वो भी स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए। उसके बाद देखिए, दैट रेस्पोंडेंट हैज़ गॉट इमूवेबल एसेट इन द फॉर्म ऑफ लैंड्स एंड अ हाउस एट विच फादर हिज मंथली रेंट ऑफ and earn about rupees per month from the telecommunication business and has no other liabilities apart from the parents present applicant, and he leads a lavish life. हाँ, वाइफ साथ में ये भी बता रही है कि जो उसका पति है, उसके पास बहुत सी ज़मीन जायदाद है, वो टेली कम्युनिकेशन का बिज़नेस भी करता है, उसके पास काफ़ी आमदनी है और उसके पत्नी और बच्चे को छोड़ के उसकी ऐसी कोई मतलब दूसरी जिम्मेदारियां नहीं है कि वो पत्नी और बच्चे को भरण पोषण ना कर सके। दैट उसके बाद में वो पत्नी क्लेम करती है दैट पिटिशनर इज़ अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ एंड हर माइनर चाइल्ड बीइंग इलिटरेट, शी इज़ अनेबल टू गेट हर सेल्फ एनी जॉब। पत्नी कहती है कि चूँकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, इसलिए मेरे पति से कहा जाए कि मुझे पृथक निवास के साथ साथ मुझे और मेरे बच्चे के लिए भरण पोषण अदा करे। इन द सर्कमस्टांसेस द पिटिशनर हैज सफिशिएंट कोज टू लिव सेपरेट विथ हर चाइल्ड एंड प्रेज दैट कोर्ट मे बी ग्रेशियसली प्लीज्ड to order the respondent to make a monthly allowance for maintenance of the applicant and her minor child at the rate of rupees per month or at such rate as the court may deem fit and proper from the date of the application. लास्ट में जो वाइफ है जिसने मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन फाइल की है, वो न्यायालय से प्रार्थना करती है कि उपरोक्त सभी परिस्थितियों के अंतर्गत मुझे अपने पति से पृथक रहने का अधिकार प्राप्त हुआ है, क्योंकि वो मेरे साथ क्रुएल्टी करता है। साथ ही साथ मैं न्यायालय से ये प्रार्थना भी करती हूँ कि मुझे व मेरे बच्चे को मेरे पति से जो है मंथली मेंटेनेंस दिलाया जाए, जो जितना भी न्यायालय उचित समझे। और इस प्रार्थना के साथ ही अपनी एप्लीकेशन को वाइंड अप करते हैं। इसके राइट हैंड साइड पर पिटिशनर अपने साइन करती है। एडवोकेट के थ्रू अगर एप्लीकेशन दिया है तो एडवोकेट के साइन बिलो होंगे, अदरवाइज डायरेक्ट एप्लीकेशन भी मैट्रिमोनियल फैमिली कोर्ट में दी जा सकती है, क्योंकि फैमिली कोर्ट में एडवोकेट के थ्रू जाना कंपलसरी नहीं होता है, पार्टीज़ डायरेक्ट भी जा सकती हैं। बेसिकली पार्टी डायरेक्ट ही फैमिली कोर्ट में अप्रोच करती हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस एंड डेट लिखते हैं। होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।